हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी और आपका स्वागत करता हूं द जूम रिव्यू शो पर। हर हफ्ते की तरह आज भी मैं आपके लिए लाया हूं नए फिल्मों के चटपटे रिव्यूज अपने अनोखे अंदाज में। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड ग्रैब सम पॉपकॉर्न, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं आपका फेवरेट रिव्यू शो द जूम रिव्यू शो। तो कौन सी फिल्म है इस हफ्ते की सबसे धमाकेदार रिलीज? हिंट देता हूं, ये बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड की फिल्म है। जी हां, द डार्क नाइट राइजेस। इस फिल्म से डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन अपनी बैटमैन ट्रिलॉजी पूरी करते हैं। पुराने कास्ट मेंबर्स के अलावा कुछ नए चेहरे दिखाई देंगे, लाइक एन हैथवे, टॉम हार्डी एंड जोसेफ गॉर्डन लिविट। कॉमेडी फिल्म मेरे दोस्त पिक्चर अभी बाकी है, रिलीज हो रही है इस हफ्ते। डायरेक्टर रजनीश ठाकुर की इस फिल्म में सुनील शेट्टी लीड रोल निभा रहे हैं और उनका साथ देंगे उदिता गोस्वामी, ओम पुरी एंड राजपाल यादव। चिल्ड्रंस फिल्म गट्टू को डायरेक्ट किया है राजन खोसा ने। इसमें दिखाई देंगे जयंता दास और चाइल्ड एक्टर मोहम्मद समद, जिन्होंने टाइटल रोल निभाया है। आफ्टर सक्सेसफुली टूरिंग वेरियस फिल्म फेस्टिवल्स, गट्टू कम्स होम टू इंडिया। और आज हमारे स्पेशल सेगमेंट ओक्यू स्पिक्स में मैं आपको बताऊंगा मेरे टॉप 5 राजेश खन्ना फिल्म्स। जी हां, और नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। तो दोस्तों, let's rise to the occasion with a review of The Dark Knight Rises. This is one of the most anticipated films in recent times. 2008 की फिल्म The Dark Knight had raised the bar high after the Batman franchise was rebooted with the successful Batman Begins in 2005. क्या The Dark Knight Rises लोगों के expectations को पूरा कर पाएगी? Let's find out. The Dark Knight Rises की कहानी शुरू होती है 8 years after the previous film The Dark Knight ended. After taking the blame for Harvey Dent's crimes, Bruce Wayne has hung up his Batman costume and lives like a recluse. लेकिन गौतम शहर में फिर से दहशत मचती है due to the arrival of the dangerous terrorist Bane. उसका साथ देती हैं सेलिना काइल, also known as Catwoman. दोनों के टारगेट पर हैं Bruce Wayne. Now Batman needs to return to tackle the growing menace of the powerful supervillain Bane. Will a rusty Batman be able to combat his deadly foe? Will he be able to rise up and save the city of Gotham from Bane's evil plans? हम find out करेंगे in The Dark Knight Rises. ऑस्कर विनर क्रिस्टियन बेल एक बार फिर नजर आएंगे as Bruce Wayne and Batman. He does a fantastic job and you can clearly see his character's pain, anguish and struggles. This time round, Batman is pitted against a more formidable villain and he appears weaker than in the previous 2 films. This makes him more human and the audience roots for him. और अगर गैजेट्स की बात करें तो इस बार Batman gets to use the Batmobile. Batman के कैरेक्टर में काफी डेप्थ है and is very satisfying to watch. Anne Hathaway plays the role of Selina Kyle, the Catwoman. She's a complex and grey character. Anne is perfectly cast for this role and is absolutely smashing. She looks alluring and menacing at the same time. Anne is given a good amount of stunts to perform and she delivers admirably. She also gets to ride the Bat bike. Kristen Bale के साथ उनकी chemistry superb है and the scenes together are enjoyable. इस multi-starrer में Anne manages to stand out and creates a terrific impact. Tom Hardy will be seen as a supervillain Bane. He looks huge, ferocious and absolutely overpowering. In fact, Bane के सामने Batman looks utterly helpless, which makes Bane a formidable foe. Since Tom is wearing a mask throughout the film, his voice is unclear in most of the scenes, which is the only blemish in an otherwise brilliant performance. That said, comparisons with the previous film villain, the Joker, played by Heath Ledger, are unfair but inevitable. Christopher Nolan returns to direct the 3rd installment in the Batman series. He successfully revamped the franchise with Batman Begins and outdid himself with The Dark Knight. Nolan displays his mastery with interesting characterizations and excellent camera work. The scenes where explosions rock Gotham City are truly spectacular. The film is packed with action, intrigue, and a fair amount of emotional connect. You can relate some parts of the film with Batman Begins and other parts with The Dark Knight. Christopher Nolan delights with his vice-like grip over the proceedings, and even though it's a long film, you don't mind it. Friends, that was my review of The Dark Knight Rises. लेकिन मेरा verdict जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। कहीं मत जाइए, I'll be right back after a short break. Welcome back दोस्तों, आप देख रहे हैं The Zoom Review Show और मैं हूं आपका Knight in Shining Armor, उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया my review of The Dark Knight Rises. Now I will take you away from the darkness and shed some light on the verdict. The Dark Knight Rises is a satisfying conclusion to the epic Batman trilogy. Never has Batman appeared so vulnerable than in this film. This is a welcome departure which makes for a compelling watch. Superb action, grand scale and mind-blowing camera work add to the grandeur. All the actors have done a great job. My only complaint was that Michael Caine and Morgan Freeman weren't given meteor roles. तो सोच क्या रहे हैं,
Rise up from your seats and rush to the nearest theater. You don't want to miss this one, क्योंकि The Dark Knight Rises को मैं देता हूं 4 stars। मेरे दोस्त पिक्चर अभी बाकी है। जी हां, इस कॉमेडी फिल्म में सुनील शेट्टी प्लेज अ बॉलीवुड डायरेक्टर। उनका साथ दिया है उदिता गोस्वामी और राजपाल यादव ने। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय रजनीश ठाकुर promises a lot of laughs. Let's find out if it can deliver. Let me start by saying कि ये फिल्म का सब्जेक्ट अच्छा है और टॉपिक भी रेलेवेंट है, लेकिन बॉलीवुड पर बनी इस फिल्म में there is nothing else to rave about. फिल्म के कैरेक्टर्स बहुत लाउड हैं, although foreign locations में भी शूटिंग हुई है, there is a certain overall tackiness about the film. The film's theme is on an uncompromising attitude, लेकिन खुद फिल्म मेकर्स लगता है ये बात भूल गए। सुनील शेट्टी की एक्टिंग डिसेंट है, लेकिन द फिल्म फेल्स टू एवोक मच लाफ्टर। ओम पुरी और राजपाल यादव के अलावा सपोर्टिंग कास्ट की एक्टिंग बिलो एवरेज है। मेरे माने तो ये इस पिक्चर को ही बाकी रहने दीजिए। मेरे दोस्त पिक्चर अभी बाकी है को मैं देता हूं 2 स्टार्स। मेरे दोस्त, मेरा शो अभी बाकी है। हमारी अगली फिल्म है गट्टू। दिस चिल्ड्रंस फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड अ काइट फ्लाइंग कंपटीशन। तो चलिए देखते हैं कि गट्टू की ये पतंग उड़ान भर पाएगी या फिर कट जाएगी। लेट्स फाइंड आउट। जितना छोटा फिल्म का टाइटल है, फिल्म की ड्यूरेशन भी इतनी कम है, लेकिन मेक नो मिस्टेक, ट्रीटमेंट और एक्सिक्यूशन में इस फिल्म में कुछ भी छोटा नहीं है। गट्टू की नरेशन सुपर्ब है एंड द सिंसियर अटेम्प्ट बाय डायरेक्टर राजन खोसा मस्ट बी लॉडेड। फिल्म की आइडिया और स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। लीड रोल निभाने वाले चाइल्ड एक्टर मोहम्मद समद की एक्टिंग सुपर्ब है। फिल्म फेस्टिवल्स में इस फिल्म ने बहुत अवार्ड्स जीते हैं एंड आई कैन क्लियरली सी व्हाई। बच्चों के अलावा एडल्ट्स को भी ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इस वेल रिटन, वेल एक्सिक्यूटेड फिल्म को मैं देता हूं 3.5 स्टार्स। दोस्तों, वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट OQ Picks का, जहां मैं उमर कुरैशी विल रेकमेंड माय फेवरेट फिल्म्स। इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार राजेश खन्ना हमारे बीच नहीं रहे। आई वुड लाइक टू पे ट्रिब्यूट टू द लेजेंड इन माय ओन स्मॉल वे। तो आज हमारे टॉपिक में हमारे टॉप 5 राजेश खन्ना फिल्म्स। नंबर 5 पे है अवतार। 1983 की इस फिल्म में राजेश खन्ना प्लेड अ पुअर मैकेनिक विद 2 grown up children. काका was superb in this rags to riches story. अगर फिल्म बागबान की कोई इंस्पिरेशन है, then this film would have been it. राजेश खन्ना को अपने परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेट किया गया फॉर बेस्ट एक्टर एंड राइटफुली सो। नंबर 4 पे है कटी पतंग। आराधना के बाद शक्ति सामंत और राजेश खन्ना की हिट जोड़ी ने इस फिल्म में भी 4 चांद लगा दिए। 1970 की इस फिल्म में काका के साथ नजर आई आशा पारेख। दोनों की केमिस्ट्री अच्छी थी, लेकिन कटी पतंग को मेमोरेबल बना दिया राजेश खन्ना क्रूनिंग टू ये जो मोहब्बत है। नंबर 3 पे है अमर प्रेम। ये फिल्म रीमेक थी ऑफ द बंगाली फिल्म निशी पद्मा ऑफ 1970। राजेश खन्ना और शक्ति सामंत ने एक बार फिर एक हिट फिल्म बनाई। बंगाली ब्यूटी शर्मिला टैगोर ने हीरोइन का रोल निभाया एंड दे रिपीटेड द मैजिक ऑफ आराधना। फिल्म में काका जी के डायलॉग्स आज भी लोगों को याद हैं। डायलॉग्स लाइक पुष्पा, आई हेट टीयर्स एंड हु कैन फॉरगेट द थॉट प्रोवोकिंग चिंगारी कोई भड़के। नंबर 2 पे है आराधना। दिस इज वेयर इट ऑल स्टार्टेड। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना बिकेम एन ओवरनाइट सेंसेशन। एक डबल रोल में राजेश खन्ना चार्म्ड एन एंटायर नेशन। जब स्क्रीन पर उन्होंने गाया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, हिंदुस्तान की हर लड़की खुद को इमेजिन करने लगी इन द प्लेस ऑफ द फिल्म हीरोइन शर्मिला टैगोर। तो ये रही माय टॉप पिक ऑफ दिस सीरीज, आनंद। अक्लेम डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की इस फिल्म में राजेश खन्ना प्लेड अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कैंसर। उनकी परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग थी। हिज क्रेजी एंथुसियाज्म कॉम्प्लीमेंटेड हिज फिलोसॉफिकल आउटलुक। आज भी बाबू मोशाय वाले डायलॉग्स हर किसी को याद हैं। द ग्रेट स्टार इज नो मोर, बट दिस क्लासिक फिल्म रिमाइंड्स अस व्हाई द लेजेंड एंड्योर्स। और अब वक्त है हमारे दूसरे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का। सल्लू भाई की अगली फिल्म है द मच अवेटेड यशराज फिल्म एक था टाइगर। सलमान के साथ दिखाई देंगी कटरीना कैफ। माशाल्लाह का म्यूजिक दिया है साजिद वाजिद ने और वोकल्स दिए हैं वाजिद और श्रेया घोषाल ने। इस हाई एनर्जी अरबिक स्टाइल गाने का वीडियो काफी पॉपुलर हो चुका है। वेस्टर्न बीट्स मिक्स करके साजिद वाजिद ने इसको और ग्रूवी सॉन्ग बना दिया है। गैंग्स ऑफ वसेपुर 2 जल्द रिलीज होने वाली है। इस बार फिल्म का फोकस होगा नवाजुद्दीन शेख पर। चीचा लेडर को कंपोज किया है स्नेहा खनवलकर ने और इसे गाया है बिलीव इट और नॉट 12 साल की दुर्गा ने। गाने का म्यूजिक फास्ट पेस है और लिरिक्स इंग्लिश में है। ये गाना अनकन्वेंशनल जरूर है, लेकिन सुनने में मजेदार है। दोस्तों, ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है नए फिल्मों के बारे में, वी शैल फाइंड आउट एक छोटे से ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ज़ूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद हमने ऑडियंस से पूछी उनकी राय, तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, बॉलीवुड के 100 साल शुरू होने पर हर हफ्ते मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताया करूंगा। सो हियर वी गो।
द फिल्म मुगले आजम वॉज अ ट्राइलिंगुअल। रिपोर्टेडली फिल्म का हर सीन को 3 बार शूट किया गया था। द फिल्म कॉन्सेप्ट ऑफ धूम केम टू आदित्य चोपड़ा व्हेन ही वाज वाचिंग काला पत्थर, वन ऑफ हिज फादर्स एक्शन थ्रिलर्स। अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का, टॉप मूवीज ऑफ द वीक व्हिच आर करंटली रनिंग इन थिएटर्स। नंबर 6 पर है राउडी राठौर, जिसने अपने 7th वीक में 25 लाख रुपीस का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 100 थिएटर्स में चल रही है और इस फिल्म का अब तक का नेट कलेक्शन है 132.3 करोड़। नंबर 5 पर है फरारी की सवारी, जिसने अपने 5th वीक में 50 लाख रुपीस का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 200 थिएटर्स में चल रही है और इस फिल्म का अब तक का नेट कलेक्शन है 28 करोड़। नंबर 4 पर है गैंग्स ऑफ वसेपुर, जिसने अपने 4th वीक में 1 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 300 थिएटर्स में चल रही है और इस फिल्म का अब तक का नेट कलेक्शन है 25.5 करोड़। नंबर 3 पर है द अमेजिंग स्पाइडरमैन, जिसने अपने तीसरे हफ्ते में 3 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। दिस इंक्लूड्स हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन्स। ये फिलहाल 500 थिएटर्स में चल रही है और इस फिल्म का अब तक का नेट कलेक्शन है 42 करोड़। नंबर 2 पर है बोल बच्चन, जिसने अपने दूसरे हफ्ते में 21.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 1000 थिएटर्स में चल रही है और इस फिल्म का अब तक का नेट कलेक्शन है 82.4 करोड़। और नंबर 1 पर है कॉकटेल, जिसने अपने पहले ही हफ्ते में 53.52 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 1017 थिएटर्स में चल रही है। और अब एक क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का। द डार्क नाइट राइजेस को मैंने दिए 4 स्टार्स, मेरे दोस्त पिक्चर अभी बाकी है को मैंने दिए 2 स्टार्स एंड गट्टू गेट्स 3.5 स्टार्स फ्रॉम मी। दोस्तों, अपने रेटिंग्स भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा कंपैरिजन मेरे और आपके रेटिंग्स का। कॉकटेल को मैंने दिए 3.5 स्टार्स और आपने दिए 2.5 स्टार्स। इनटचेबल्स को मैंने दिए 4 स्टार्स और आपने भी दिए 4 स्टार्स। फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेंडिंग मी योर रेटिंग्स। मुझे लिखते रहिए at facebook.com/zoomtv। Now you can also watch our episodes on youtube.com/zoomtv and dailymotion.com/zoomtv। अब वक्त आ गया है अलविदा कहने का। मैंने तो सारी फिल्में देख ली हैं, अब आप भी थिएटर जाइए और सारी फिल्मों का मजा लीजिए। लेकिन हाँ, डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन, क्योंकि मैं फिर लौटूंगा अगले हफ्ते, सेम टाइम सेम प्लेस, ओनली ऑन द जूम रिव्यू शो। तब तक आप देखते रहिए जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी, सेइंग बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।